So I just give you a glimpse of what exactly we are going to do with process mapping, or how we list down the KPIV. And then you can pull a video, any video you can show me over here. I will give you the right. And we'll say what exactly, because last time I have shared a video for paint, which you have mapped. Now you can also share. We have other videos also available to share with you. You can also, if you have any process video, we can just give you a glimpse that how it can be done. Okay. So I just give you an input that what is the way to think about it for listing down the KPIVs. So the first thing that we have to look here is more towards basically, so first process clear, right? We know what is process input output model. We already know this thinking. So there's an input, there's a desired output, okay? And this is, we say KPOV, and the input coming to the process. And there's a process parameter. And a combination of input and process parameter is my KPIV list, which we are going to map it for a process. This could be any process. It can be assembly process, it can be a welding process, it can be for any process. So how to think about the processes KPIV? So we have a method here. There's a thinking method that we have devised in the process mapping. We call it incoming source of variation. Incoming source of variation. And there's a process parameter. Incoming source of variation also we divide into two parts. Input material, we call it bought out parts or bought out components, whatever the term you can use it. And another incoming source of variation is from your previous processes, previous manufacturing processes, not from supplier, your own previous processes. So this is another way of looking into it. And then there is a process parameter. There are 4 parameters we talk about. Machine variation, jigs fixture tooling variation, JFT we call it, then human variation, and the environmental factors. So 4 things here, 2 things here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 level of thought process has to be mapped to list down the KPIV. So there are 6 level of thought process that we are talking about here as KPIV. So let me explain one by one what does it mean, and then on a video you can just make a list, and very fast in 15 minutes, 20 minutes you can map any process by this way. And this is all about KPIVs. This is about your KPIVs. So this method is about KPIVs. So I can just share with you like what exactly it means. Any process we can take it up, or I just pull the video out, how to think about a process as a, can I give this 6 examples first and then take a video out and think about it. Okay. The first category is incoming. Suppose there's a process. This is your incoming, this is your process parameter, and this is your desired output. Okay. So incoming has 2 things which we have defined here, and process parameter has 4 things which we have defined here. This total becomes 6 things that we are talking about. So मैं फर्स्ट से उठाता हूं कि जो आपके प्रोसेस में पीछे मटेरियल आ रहा है, जैसे आप मशीनिंग कर रहे हैं, सो उससे पहले कास्टिंग आई. द वेरिएशन इन कास्टिंग इज कॉल्ड लेवल 1 थिंकिंग प्रोसेस. इट्स कॉल्ड इनपुट मटेरियल वेरिएशन coming into the process from supplier. It is from the previous supplier. Previous supplier means from the supplier basically. We call it bought out parts. Somebody call it bought out components. Somebody call it raw material. Whatever the term you want to use. RMB look at. They call it RM. Sorry, RM. This is one variation. Like for example, in a machine, draft angles in the casting is important. So we say drafting the material or the casting material and so on.
What is the process? What is previous process? Suppose there are 4 machining operation, and I am mapping operation 20. Machining operation 20, I'm mapping. So the previous process giving you raw dia, which is coming here as OP20 to finished dia. So the previous process had delivered you some output, which will become input to the next process. This is not supplier part. This is your previous process giving it output becomes input to the next process. This is the meaning of second case. Previous process output. सर ऐसा हो सकता है मेरा प्रोसेस इसलिए खराब हो रहा है कि प्रीवियस प्रोसेस ने अपना आउटपुट ठीक नहीं दिया है. Is it possible in your manufacturing line? Is it possible or not? It's quite possible. Yes, sir. Previous process has delivered a problem and my process suffered and it produces a defective output. So इसको हम supplier BOP नहीं बोलेंगे, but input जरूर बोलेंगे, but उसकी categorization है previous process output. So ये हो गया second category of the definition. Then we have third category of the definition, which is machine variation. What is machine variation? Any equipment I am using or machine I am using, the parameter of the machine is called machine variation. For example, speed, pressure, temperature, feed. It could be anything. Okay, like in molding machine, we call it injection pressure, injection speed, chamber temperature, T1, T2, zone temperature could be one thing. Injection time, hold time in welding, and also machine parameters. That is my third category of thinking. My fourth category of thinking is called jig fixture tooling. Machine and fixtures and toolings, we take it separate. Suppose molding is a machine, but mold is a tool. The problem will the molding tool will be separately listed down as compared to the machine parameters. So it's a very common practice which everybody follows. So for me, machine is separate, tool is separate. How we will know machine? Any tool can be loaded on different machine. That is why we keep tool as a separate entity. In assembly line, sometimes tooling is not used. Fixtures are used to keep a product on the fixture, assemble it, or put some torque on it. The variation in fixture, plane fixture, profile of the fixture, this also matters. Similarly for jig. Jig is also a guiding tool. It guides the support drilling, so how the two holes are being guided. So again, is a part of, so I mixed it as a one category, jig ho, fixture ho, tooling ho, other than machine ho, so that we are putting in the fourth category. Okay, that's my fourth category. Then we have human variation, which is my fifth category. And before I come to human variation, because that needs a little bit more explanation as we did last time, let me take sixth part first, environmental factor. Environment factor are those factors under which a work environment, under which a product is manufactured, like ambient temperature, humidity, moisture level, dust level, lux value in the workplace, and so on. So these are all environmental factors. So what are the environmental factors? Humidity हो सकती है, dust हो सकती है, what else? Noise हो सकती है, lux value. We were working for sensing of part. I told you that sensing of part. The lux value is important because the light is not right, the part is not sensed. So it is an environmental condition. Temperature in a lot of painting industry, the environmental ambience temperature is matter. That matters a lot. So these are environmental factors. But what is human variation? This needs a little bit explanation. Human variation is basically explained in a way what is not human variation. पहले हम ये समझ लेते हैं क्या क्या ह्यूमन वेरिएशन नहीं है, फिर जो बच जाएगा वो सब ह्यूमन वेरिएशन है. सो ह्यूमन वेरिएशन को आप ऐसा समझ ले सकते हैं कि कोई ऑपरेटर या एसोसिएट काम कर रहा है तो हम किस किस चीज को ह्यूमन वेरिएशन में काउंट नहीं करेंगे. अगर मैंने ये लिखा है ऑपरेटर नेग्लिजेंस, तो इसको मैं ह्यूमन वेरिएशन में काउंट नहीं करूंगा. या आपने लिखा ऑपरेटर अनस्किल्ड,
या आपने लिखा ऑपरेटर एसोसिएट, कुछ भी लिखा ऑपरेटर एसोसिएट अनअवेयर या नॉट नॉलेजेबल, या लिखा है नॉट ट्रेन्ड और न्यू, ऑपरेटर न्यू। ऐसे कोई भी आपने फैक्टर्स लिखे हैं या केपीआई तो हम उसको केपीआई नहीं मानेंगे। ह्यूमन वेरिएशन में क्या लिखना है, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, बिकॉज मशीन में हमें क्लियर है, पिक्चर्स में हमें क्लियर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमें क्लियर है, इनपुट में हमें क्लियर है, प्रीवियस प्रोसेस में क्लियर है। ह्यूमन वेरिएशन जो वन ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर है, समटाइम वी आर नॉट वेरी क्लियर ऑन इट। सो व्हाट इज ह्यूमन वेरिएशन? अच्छा, ये क्यों नहीं लिखना है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन, ये हमें क्यों नहीं लिखना है? व्हाई वी डोंट नीड दिस? ये लिखने से क्या नुकसान है और ये क्यों रोका हुआ है? So proper root cause नहीं मिलेगा because these all are generic statements. Actually, person to person variation we have to capture, not is like ये root cause नहीं है. Person to person में भी variation है तो that we can capture. Yeah, very correct. What you are saying is logical. सर ये लिखने से ना प्रॉब्लम हाइड हो रही है, इससे एक्सपोज नहीं हो रही। जैसे नेग्लिजेंस कहने से उसके बाद हमें कुछ मिलता नहीं है, या अनस्किल्ड कहने से, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है ट्रेनिंग। व्हाट डू यू से? व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स? अगर ये लिख भी देंगे तो आप मैक्सिमम क्या करोगे? Training, yes. ट्रेनिंग दोगे, और ट्रेनिंग से मिस्टेक प्रूफिंग होती नहीं है। मतलब लॉजिक हमारा ये है दैट ट्रेन्ड पर्सन कैन कमिट एन एरर। व्हाट डू यू से? सर ये रूल है दुनिया में दैट ट्रेन्ड पर्सन कैन नॉट कमिट एन एरर, ऐसा कोई रूल है दुनिया में? इज ट्रेनिंग मिस्टेक प्रूफिंग? No, sir. यस और नो? सर इज ट्रेनिंग ए मिस्टेक प्रूफिंग सिस्टम? क्या ट्रेनिंग से हम मिस्टेक प्रूफिंग कर सकते हैं? No, sir. नहीं कर सकते। सो ये सब लिखना जो है ना टाइम पास है बेसिकली, इससे होना कुछ नहीं आता है। ये लोगों को ओवर ए पीरियड टाइम रियलाइज हो गया दैट दीज आर ऑल जस्ट टू, मे बी आप कोई कस्टमर को कोई रूट कॉल लिख के दे रहे हैं, इंटरनली दे रहे हैं, वो अलग बात है, बट फॉर सिक्स सिग्मा स्टडी पर्पस हमें कोई इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये कई बार चीजों को हाइड करने के लिए ज्यादा यूज होता है देन एक्सपोज करने के लिए। हमें फैक्टर को एक्सपोज करना है, हाइड नहीं करना है। नेग्लिजेंस, लापरवाही एक फैक्टर है जिससे हाइड हो जाता है, ये हमें समझ नहीं आता इसके अंदर है क्या। व्हाट इज नेग्लिजेंस? कैन यू डिफाइन व्हाट इज नेग्लिजेंस? इसके अंदर छुप गई हैं चीजें, कोई हाइड हो गई, एक्सपोज नहीं हुई। अब क्या लिखना है इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें लिखोगे तो हमें कुछ, हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। सो दैट्स द लॉजिक। गिव मी अ सेकंड में अपना मार्कर पिक कर लेता हूं जस्ट। Okay, so what we are trying to say here is ये चीजें हमें लिखने का कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। सो हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन वेरिएशन में क्या लिखने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन का जो टेक्निकल एरर है उसको हम लिखेंगे एज ए ह्यूमन वेरिएशन। मतलब क्या है, जैसे अगर एक आदमी कार ड्राइव कर रहा है और उसने गलती करी है तो मैं इसको नहीं लिखूंगा ऑपरेटर नेग्लिजेंस, मैं लिखूंगा कि वाइल नेगोशिएटिंग द टर्न, जब वो टर्न ले रहा था, देन नॉट लुकिंग इनटू द रियर व्यू मिरर, उसने रियर व्यू मिरर में नहीं देखा। एरर लिखूंगा, बेसिकली एरर क्या हुआ, एरर हुआ टर्न लेते वक्त मिरर पे नहीं देखा, ठीक है ना। या उसने जब ब्रेक लगाया तो उसका रिस्पॉन्स टाइम पुअर था, ये नहीं लिखूंगा लापरवाही करी, नहीं, उस लापरवाही के अंदर जाऊंगा और एक एरर को नोट करके लिखूंगा कि ह्यूमन एरर है क्या। अब जैसे मेरे को याद है एक मशीन का
मशीन था, उसको इट हैज टू काम डाउन, यहाँ पे एक फिक्चर था, उसने पार्ट को गलत रखा और वो रैम जब नीचे आया, उसका हाइड्रोलिक रैम नीचे आया, तो उसने पार्ट को प्रेस करके डैमेज कर दिया, तो पार्ट वाज गॉट डैमेज्ड, बेसिकली स्क्रैप हो गया। अभी वो जो पार्ट स्क्रैप हो गया है, ओके, अब प्रॉब्लम क्या आती है हमें, हम ये लिखते हैं कि लापरवाही थी इसकी, वी डोंट राइट नेग्लिजेंस, वी से ऑपरेटर इज नॉट एबल टू अलाइन द पार्ट ऑन द फिक्चर। क्या लिखा है यहाँ पे? मिस अलाइनमेंट ऑफ पार्ट विद द फिक्चर, एरर लिखा है, टेक्निकल एरर लिखा है। इससे फायदा क्या होगा सर? अगर हम टेक्निकल एरर लिखेंगे तो एक एडवांटेज मिलेगा हमें, कल हम फ्यूचर में जाके कभी कंट्रोल फेज जब आएगा हमारा, तो अगर हम एरर लिखेंगे तो एरर प्रूफिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम ऑटो अलाइन फिक्चर बना सकते हैं कि वो अलाइनमेंट अपने आप हो जाए, पर नेग्लिजेंस कहने से तो चीजें छुप जाएंगी, वो हमें नजर नहीं आएंगी। सो ह्यूमन एरर जो है वो आपको टेक्निकली लिखना पड़ेगा। इज इट ओके? जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं चीज रख के भूल गया, ये टेक्निकल एरर नहीं है। एरर ये हो सकता है कि एक आदमी चीजें कहीं भी रख सकता है, so there is no defined place, so not putting the thing on a defined place or not following the 5S as defined in the 5S system। मतलब आपको टेक्निकल एरर लिखना है, जेनरिक स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है। तो आर यू क्लियर ऑन दिस ए लिटिल बिट? Yes, sir. Yes, sir. सो 6 कैटेगरी में सोचना है बेसिकली, ठीक है ना? और आपके अगर हर एक्टिविटी लेवल पे 6 जितने ऑपरेशंस हैं उतने में 6 कैटेगरी में सोचना है। सो आप कोई भी एक ऑपरेशंस ले लो, हम लोग अभी उसको मैप कर देते हैं। सो ये 6 कैटेगरी याद रखो। फर्स्ट इज इनपुट मटेरियल, उसके बारे में सोचना है। फिर सेकंड कैटेगरी इज प्रीवियस प्रोसेस आउटपुट, उसके बारे में सोचना है। थर्ड इज मशीन वेरिएशन। फोर्थ इज जिग फिक्चर टूलिंग। फिफ्थ इज ह्यूमन वेरिएशन। सिक्स्थ इज एनवायरमेंटल फैक्टर। दैट्स ऑल। लुकिंग इनटू अ प्रोसेस, अब प्रोसेस में देख के कैसे लिस्ट डाउन करना है ये 4-6 कैटेगरी। लेट्स डू ए स्मॉल एक्सरसाइज एंड क्लोज दिस चैप्टर। So कोई वीडियो आप दिखाना चाहेंगे या should I show you, or if you have something already recorded, people are familiar with this, let's do it here, let's map it in 5-10 minutes. Last time मैंने तो दिखाया था आपको, एक पेंट वीडियो था। If you want I can show it again, or some other video I can pull it, or what do you suggest? You want to pull something or should I pull some? Yes, any suggestions? Should I? You can share, sir. Yeah, I think yeah, I will share that. Last time मैंने एक I think पेंट शॉप का दिखाया था ना, if you remember. Okay, let me pull out that just.
Yes, I got the video now. Is it visible? Some screens visible? सर वीडियो पुल आउट दिख रहा है आपको? तो मैं प्ले करता हूँ। Yes, sir. Yes, We sir. can. अच्छा, मैं अभी ना एक फर्स्ट टाइम एक बार रन, क्योंकि उसको मल्टीपल टाइम रन करूंगा, तो मैं एक बार साउंड के साथ रन कर रहा हूँ। वैसे इसमें कोई ऐसी आवाज नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री की नॉइज है, जस्ट टू गेट ए फील। उसके बाद मैं साउंड म्यूट कर दूंगा अवर डिस्कशन पर्पस। सो एक बार मैं विद साउंड चला रहा हूँ, उस वक्त किसी और की साउंड नहीं आएगी। सो जस्ट हैव ए लुक, राइट, एंड देन आई विल म्यूट द साउंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इट। ओके, सो जस्ट काइंडली बियर दैट। ओके, सो आपने एक लेवल ऑफ वीडियो देखा कि एक पेंट वाला जो एक मिरर प्लेट है वो पेंटिंग होते हुए जा रहा है, ठीक है ना? इट्स ए सिंपल प्रोसेस, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट इज, हम एक बार दोबारा आएंगे। इट्स ए फर्स्ट लुक, है ना, फर्स्ट व्यू, ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या है। सो विल एक्सप्लेन, बट अभी प्रॉब्लम डेफिनेशन पे आते हैं पहले हम ना। लेट मी आल्सो पुल ए वीडियो व्हिच विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक है। सो मैं एक बार उसको ओपन करता हूँ एंड सो ये बेकिंग ओवन में जाने के बाद मैं एक सेकंड वीडियो आपको दिखाता हूँ। सो अभी ये प्लेट्स आपको विजिबल हैं सेकंड वीडियो में, हैं? ये Yes, बेकिंग yes. ओवन से बाहर आ रही हैं। इसके आगे का स्टोरी देख लेते हैं एक बार। सो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कुछ प्रॉब्लम डेफिनेशन का, ठीक है ना? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? पेंट ओवरलैप हो रहा है एक कंपोनेंट से अदर कंपोनेंट। हाँ, सो ओवरफ्लो पेंट, ओवरफ्लो हो रहा है, ट्रिकल डाउन हो रहा है बेसिकली।
जिस सरफेस पे पेंट होना था वो तो हुआ, बट वो नीचे चला गया, मिरर साइड पे चला गया, पेंट ट्रिकल डाउन हो गया, ओवरफ्लो हो गया, पेंट अपीयरिंग ऑन प्राइमरी सरफेस, हाँ मेन सरफेस के ऊपर आ गया, और जहां प्रोटेक्टेड लेयर थी वो तो आया, बट दूसरी तरफ भी आ गया, राइट। अभी ये डेफिनेशन प्रॉब्लम की है। फिर किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, वो रीवर्क वाला कुछ पूछ लिया था, ठीक है ना। सो मैं एक थर्ड वीडियो दिखा देता हूँ जिसको हम मैप कर नहीं रहे हैं, वी आर नॉट मैपिंग इट, ओके, वी आर नॉट मैपिंग इट। क्यों नहीं कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगा एक बार, जस्ट let me open one more video for you. So ये जब बेकिंग ओवन के थ्रू जाता है, फिर इसके साथ फाइनली क्या होता है, ये प्रॉब्लम भी नजर आ जाती है। देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज जो लास्ट स्टेप, ठीक है ना, वो लास्ट स्टेप भी देख लेते हैं कि क्या है। So is this visible now? Some grinder? Yes, sir. Visible, sir. So please have a look on this. ये रिजेक्टेड प्लेट भी नहीं है, रिजेक्ट वाली ये तुम्हारे हाथ में है, उस साइड वाला दिखा, हाँ ये दिखा, ये ले करिए, तो इसको करिए बस। Okay, I think now it is visible. Let me make sound mute. Okay. So मेरा KPOV तो क्लियर है, मेरे को एक आउटपुट चाहिए, पेंटिंग होना चाहिए, एक ड्राई फिल्म थिकनेस आना चाहिए, और पेंट अदर साइड नहीं जाना चाहिए। सो हमारा आउटपुट्स हैं, कुछ मैप होंगे। सो मेरा एक ही आउटपुट है जो हमारा अचीव करना है, जो हमारा अचीव नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब अज्यूमिंग, क्योंकि मुझे मालूम है बाकी चीजें अचीव हो रही हैं, थिकनेस भी अचीव हो रही है। अब ये प्रोसेस हमारा स्टेप है, एक्टिविटी 1 स्टेप ही है जो प्लेस कर रहा है। पहले तो इनको आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सब नोट करना है। बेसिकली प्रोसेस स्टार्ट, ये जो एक जहां से प्लेट ये फिक्चर से उतार रहा है वहां से प्रोसेस शुरू हो रहा है, फिर ये इसको रखता है, फिर आगे जाता है ये कन्वेयर बेल्ट से, फिर आगे मूव होता है, फिर ये पेंटिंग, ये एक्चुअली पेंट कर्टेन है, बेसिकली दिस इज अ कर्टेन। ये दो स्प्लिटेड कन्वेयर के बीच में पेंट फ्लो कर रहा है, और उस पेंट को कॉन्टिन्यूस फ्लो कराने के लिए एक मोटर लगा रखा है, राइट। बेसिकली इनके बीच में गैप है और पेंट फ्लो कर रहा है, तो उसका एक पर्दा बन रहा है, कर्टेन जैसे होता है ना, एक शॉवर बन जाता है आपको, तो ये व्हाइट कर्टेन है। जब उसके थ्रू प्लेट जाएगी तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, बेसिकली जैसे है ना उसका पेंट हो गया। सो इसको ये पेंटिंग प्रोसेस बोल रहे हैं। तो यहाँ से क्वाइट विजिबल है कि ये पेंट हो गया, अदर साइड से दिखाई देगा, हाँ यहाँ से। अभी ये कर्टेन के थ्रू होता हुआ आएगा, मतलब यूनिफॉर्म कर्टेन बन रहा है। आप झरना बोलो, कर्टेन बोलो, पर्दा बोलो, व्हाइट एक कर्टेन है, और ये नीचे जा, ये कन्वेयर के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों कन्वेयर स्प्लिटेड है, बीच में गैप है, ठीक है ना। उस गैप को मैनेज करने के लिए रोलर लगा रखा है ताकि प्लेट रोलर के थ्रू ऊपर चली जाए। उसके बाद स्लो मूविंग कन्वेयर टू ये फास्ट मूविंग कन्वेयर, ये मूव कर जाता है, फिर बेकिंग ओवन में चले जाता है, सॉरी फास्ट टू स्लो मूविंग चले जाता है। स्लो मूविंग मतलब 15 मिनट बाद बेक होके ये बाहर आता है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ व्हाट आई वांट टू से कि पहला आपको काम करना होता है कि सारे स्टेप्स लिख लेने होते हैं आपको,
सो एक बार इसके स्टेप्स लिखेंगे क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, कैन एनीबॉडी लिस्ट डाउन द स्टेप्स ऑफ ऑल द प्रोसेस। मैं एक रन कर देता हूँ और एक अलग अलग टीम अपने अपने स्टेप्स लिख लीजिए, ठीक है, एंड देन वो मेरे को वर्बलाइज करके बता दीजिए, फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखना होता है। सो एक बार नाउ यू सी द वीडियो एंड मेक ए स्टेप्स। ये फाइनल रन है हमारा। Okay, so it has reached to the last step now. So can anybody share the steps, and then I write on a whiteboard, simple whiteboard. Okay, so what are the steps? Anybody can share. Step 1 पे क्या हो रहा है? मिरर को पिकअप कर रहा है एंगर से। पिकअप है ना, पिकअप प्लेट्स फ्रॉम हैंगर, ठीक है ना, डिटेल में लिख सकते हो, फ्रॉम हैंगर से स्टेप 1 हो गया, OP10 हो गया से, then go to the OP20 next operation. Yes, उसके बाद कन्वेयर 1 अगर हम मान ले फर्स्ट कन्वेयर को, तो उस पे मिरर को रख रहा है वो, कीपिंग अप। हाँ, so placing on conveyor 1, ठीक है। उसके बाद कन्वेयर 1 से 2 में जा रहा है, और 2 से 3 में जाते वक्त मतलब पेंटिंग तो ये फीडिंग कन्वेयर पे रख रहा है बेसिकली, जिससे फीड होना है, ठीक है ना। So you can say feeding conveyor. Okay. Then movement. पर्टिकुलर ओरिएंटेशन भी देख रहा है सर को रखते हुए, तो या ट्रांसपेरेंट टाइप का वो ग्लास है वो जो रख रहा है। अच्छा, अभी एक्टिविटी लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि करना क्या है हमें। So exactly, very correct you are saying. OP30 say moving from feeding conveyor to the painting conveyor. Okay, so we paint conveyor. फिर then pointing process हो रहा है, ठीक है, there is a painting process. फिर then moving from painting process to say बेकिंग। sorry, yeah. Okay. And moving it from to baking over. ये हम लोग मैप नहीं कर रहे, इट्स नॉट, हम लोग यहीं तक मैप कर रहे हैं। इसके बाद बेकिंग ओवन के बाद क्या हुआ, सो वी आर नॉट मैपिंग, क्योंकि डिफेक्ट यहाँ फिर मिल गया ना, बेसिकली यहाँ से डिफेक्ट डिटेक्ट। सो दिस इज द, सो हमारा CTP क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो हमें ये पता करना है क्रिटिकल टू प्रोसेस क्या है। बेकिंग प्रोसेस, पेंटिंग प्रोसेस,
मतलब कहाँ से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो जो जहाँ ओवरफ्लो बोल रहे हैं जो केपीओवी, वो विच प्रोसेस क्रिटिकल इन दैट? पेंटिंग प्रोसेस। पेंटिंग प्रोसेस। सो या तो हम पूरे प्रोसेस को मैप करें, या अगर हमें सीटीपी क्लियर है तो हम सिर्फ सीटीपी को मैप करेंगे, ठीक है, जस्ट टू सेव ऑन टाइम। जनरली क्या होता है, अदर देन सिक्स सिग्मा बात करूंगा तो सारा प्रोसेस मैप होता है। अगर मैं एफएमई पॉइंट ऑफ फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस की बात करूं, सो हम पहले पूरा प्रोसेस मैप कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम सिर्फ सीटीपी को मैप करते हैं जस्ट टू सेव ऑन टाइम, ठीक है ना। सो अभी मैं मान लेता हूं कि हम लोग सिर्फ सीटीपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एवरी प्रोसेस वी आर सेइंग दैट, लेट्स टॉक ऑन दैट। सो अगर मैं बात करूंगा तो मैं सिर्फ पेंटिंग प्रोसेस की बात करूंगा, क्रिटिकल प्रोसेस की। अपफ्रंट पेंटिंग प्रोसेस का कुछ डिजायर्ड आउटपुट होंगे, कुछ इनपुट होंगे, कुछ प्रोसेस पैरामीटर होंगे। ये वो फिर वही कंडीशन आ जाएगी, 2 इनपुट 4 कंडीशन और उसका एक डिजायर्ड आउटपुट। यू अंडरस्टैंड? ऐसे हर स्टेप्स को हमें मैप करना होता है, राइट? सो अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो हम एक पेंटिंग प्रोसेस को कर रहे हैं, अदरवाइज लोडिंग का भी करना है, उसने कन्वेयर पे रखा, सबको करना है। और अगर हम सब करेंगे तो फिर डेफिनेटली इट विल बी कंज्यूमिंग टाइम। सो अभी मैं क्रिटिकल प्रोसेस से पेंटिंग प्रोसेस को ही मैप कर रहा हूँ, ठीक है सर, ताकि एक ग्लिम्स मिले, एक आइडिया मिले। पेंटिंग प्रोसेस का आउटपुट क्या है, क्या क्या एक्सपेक्टेड डिजायर्ड आउटपुट है, हमें पता है टीएफटी होना TFT चाहिए। चाहिए, ठीक है। तो अब हम अदर साइड में पेंट नहीं हो। हाँ, नेगेटिव आउटपुट भी मैप करना है, ये पॉजिटिव डिजायर्ड है कि हमें डीएफटी चाहिए, होमोजीनियस चाहिए, ठीक है ना, होमोजीनियस पेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन पेंट होना चाहिए। फिर अदर साइड नहीं होना चाहिए, नो ट्रिकल डाउन टू अदर साइड, ये नेगेटिव भी लिखना है, नो ट्रिकल डाउन, नेगेटिव भी लिखना है, पॉजिटिव भी लिखना है। तो हमारा ये वाला केपीओवी अचीव नहीं हो रहा, सो हम सिर्फ ये वाला केपीओवी यहाँ प्रेजेंट करेंगे कि डिफेक्ट इज ट्रिकल डाउन, नेगेटिव ऑफ दिस इज ट्रिकल डाउन। होना क्या चाहिए था, नो ट्रिकल डाउन टू द अदर साइड। तो अभी हम क्या करें, ओवरफ्लो ऑफ द पेंट, ये हमारा एक केपीओवी हो गया जिसको हम मैप कर रहे हैं। अब इसके हम पीछे इनपुट जाते हैं, ये जो केपीआईवी जो असली स्टोरी है, ये केपीआईवी इसकी है जिसको हमें मैप करना है। सो आप सोचना शुरू करते हैं फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 6। नाउ प्लीज अप्लाई दैट थॉट प्रोसेस। सो पहला हमारा थिंकिंग क्या था, किसी को याद है? व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? केपीआईवी को मैप करने के लिए पहला स्टेप क्या था? मटेरियल वेरिएशन। इनपुट वेरिएशन। सो मुझे यहाँ पे बताइए इनपुट्स क्या आ रहे हैं, क्या इनपुट आ रहे हैं यहाँ पे जो पेंटिंग प्रोसेस में जा रहे हैं? मिरर है, मिरर प्लेट आ गया, ठीक है ना, मिरर प्लेट, पेंट है, वो तो प्रोसेस का पार्ट है, पेंटिंग प्रोसेस, ठीक है ना सर? वो पेंट पेंट इज ए पार्ट ऑफ द पेंटिंग प्रोसेस ना सर। एक प्रोसेस पैरामीटर्स हैं और एक आपका इनपुट है, ठीक है ना। इनपुट पीछे से जो मटेरियल आ रहा है, जो पीछे सप्लायर बना के दे रहा है, 2 पार्ट है ना, एक सप्लायर एक प्रीवियस प्रोसेस, ठीक है ना। सो जो पीछे से आ रहा है वो तो मिरर प्लेट ही बन के आया है। डू यू एग्री और नॉट? बॉट आउट पार्ट तो एक ही है इसमें। अब मिरर प्लेट का कोई ऐसा पैरामीटर है जिसका लिंक ट्रिकल डाउन, जैसे मेरा ये प्लेट फ्लो कर रहा था, ऐसे प्लेट जा रही थी, फिर ऊपर से वो पेंट कर्टेन फॉल कर रहा है और ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड। सो मिरर का थिकनेस स्पीड ऑफ कन्वेयर सर। नहीं अभी मैं वो आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं। पहले हम लोगों को किस बारे में सोचना है? मिरर के बारे में, मिरर प्लेट के बाद। अभी फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग पे हम बॉट आउट मिरर की थिकनेस। तो बिल्कुल, तो पहला आपने आ गया थिकनेस ऑफ द मिरर। शेप जो है जिस शेप में होना चाहिए वो शेप, मतलब शेप है, ये ऐसे कर्व ना हो, कर्व होगा तो ये नीचे आ सकता है। ये प्रोफाइल और कर्वेचर, तो इसको क्या बोलें? शेप बोलें, प्रोफाइल बोलें, फ्लैटनेस, फ्लैटनेस बोलें, रेडियस और कर्वेचर बोलें, जो लैंग्वेज टेक्निकली आपको समझ आती है वो बोल दो आप। तो एक और पैरामीटर बोल दिया आपने थिकनेस के अलावा, व्हाट इज दैट? फ्लैटनेस, फ्लैटनेस है ना। और कुछ है मिरर प्लेट में? डायमेंशंस जो है वो कौन सी आउटर डायमेंशन, अगर फ्लैटनेस है बट डायमेंशन ज्यादा है, मतलब जिस साइज में होना चाहिए आउटर डायमेंशन उससे कम या ज्यादा है, तो उससे क्या है, लिंक है उसका? लिंक हो सकता है ना सर। जैसे अगर मान लीजिए साइज में बड़ा है, 5 वो एक साथ रख रहा है,
और कन्वेयर की जो साइज है वो फिक्स्ड है, और एक साथ में वो 5 या 7 ऐसे उठा के रख रहा है, तो अगर किसी भी एक मिरर का अगर थिकनेस साइज ज्यादा है, अगर आउटर डायमेंशन की बात करें तो एक दूसरे मिरर से वो टच हो सकता है या एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकता है। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हो कि जो उसने मिरर पिक किया है वो कोई दूसरा वेरिएंट या दूसरे साइज का पिक कर लिया है साथ में, ये कह हाँ, रहे हो आप? दूसरे साइज का पिक कर लिया, या उसी में कोई ऐसा एक दो मिरर ऐसे हैं जिसका जो मतलब आउटर साइज बोले ओवर साइज है वो, तो 4 अगर सेम साइज के हैं जो स्टैंडर्ड साइज है और एक ज्यादा साइज के हैं, तो दूसरे मिरर पे वो रखते वक्त जो कन्वेयर पे रख रहा है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है। तो अगर साइज बड़ा है तो वो गैप करके रखेगा तो इट इज फाइन। मैं पूछ रहा हूँ ऐसे इन जनरल, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। सो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी रख रहा है उस पे हम ये केपीआई भी डालें या ये जो इनपुट मटेरियल पे डालना है? आई एम जस्ट आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन। नहीं सर, अगर हमें ये अभी तो इसको वो जो रख रहा है उस पे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो आ जाएगा प्रोसेस का पार्ट जो मैन पे जाएगा। सो आप ये कह रहे हो मिरर का क्या बोलेंगे, विड्थ बोलेंगे, विड्थ? हाँ, विड्थ ले लेंगे, लेंथ विड्थ। लेंथ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ तो फ्लो करना है। विड्थ बेसिकली कह रहे हो ना आप? हाँ, विड्थ ले लेंगे। विड्थ ऑफ द कन्वेयर से लेंगे, सो विड्थ, दैट्स ऑल। सो मिरर में थिकनेस, फ्लैटनेस और विड्थ से लिंक है, एम आई राइट? और साइड से भी हो सकता है सर कि अगर ओवरफ्लो होने का एक रीजन है कि जो पेंट की प्रॉपर्टी है, अगर वो ऑयली सरफेस पे अगर पेंट जा रहा है, अगर जो मतलब मिरर जो होना चाहिए वो ऑयल फ्री होना चाहिए, मतलब कोई ग्रीस ऑयल उस पर नहीं हो, ताकि पेंट जो है मतलब स्प्लेज हो उस पे से। सो सरफेस, सरफेस फिनिशिंग की बात करें। surface finish, no impurity on the surface, right? So because surface clean surface होना चाहिए, width ठीक होना चाहिए, flatness, curvature नहीं होना चाहिए, और thickness उसकी बेसिकली। और जो मिरर है सर, दोनों साइड का मतलब सरफेस ए सरफेस बी, मतलब अगर ए और बी अगर लेते हैं टॉप एंड बॉटम का, तो हाँ दोनों में डिफरेंशिएट होना चाहिए कि उसको मतलब अगर कन्वेयर पे रख रहा है तो टॉप साइड कौन सा रखना है, बॉटम साइड कौन सा रखना है। हाँ, वो तो बेसिकली मिरर साइड इज वेरी क्लियर, वो उल्टा तो रखा ही नहीं उसने जितने हैं, so that is not a part of problem definition, ठीक है ना? ठीक है। बेसिकली वो आ रहा है मिरर साइड में, तो ऐसा नहीं है कि मिरर साइड में पेंट कर दिया, वो तो पेंट होगा ही नहीं, बिकॉज प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे आप भी मिरर देखते हो ना तो पीछे Yes. पेंट Protective होता है, layer लगा सामने रहता है। मिरर होता है, यू नो दैट ना? हम्म। वरना ओपेक हो जाएगा, तो एक तरफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक तरफ मिरर साइड होता है। सो प्रॉब्लम इज दैट इट इज ट्रिकलिंग डाउन टू द मिरर साइड, सो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम डेफिनेशन, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। सो ये आपका पहले 3-4 आ गए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थिंकिंग से। Yes. Let's go to the second category of thinking. What is second category of thinking? पिकअप करके जो कन्वेयर पे प्रीवियस रख रहा है। प्रोसेस से मुझे गलत आया, तो इससे पीछे वाला प्रोसेस क्या है रखने का? मैनुअल प्रोसेस है ना जो रख रहा है Yes, कन्वेयर, yes. वही है प्रोसेस। तो उसमें क्या क्या हो सकता है इनपुट वेरिएशन जो कि हमारे को नेक्स्ट आएगा, तो पीछे रखने वाले प्रोसेस पे आ जाते हैं सर। अब आप बताओ क्या कह रहे थे, रखते वक्त क्या क्या हो सकता है, बताइए सर। रखते वक्त उसने अगर गलत रख दिया, मतलब जो जिस पार्ट को पेंट करना है वो बॉटम में रख दिया, और जो पेंट नहीं करना है वो टॉप में रख दिया, वो तो तो दूसरे डेफिनेशन में साइड आ ही पेंट हो नहीं गया। रहा, वो तो हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं। ओवरलैप हो सकता है पार्ट एक दूसरे को रखा उसका। हम अपनी केपीओवी से चल रहे हैं, हो तो बहुत अभी देखिए एफएमई नहीं कर रहे, अभी जो केपीआई केपीओवी है ना, बेसिकली जो हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन लिया उसको हम सीटीपी को मैप कर रहे हैं, ठीक है ना? इज इट क्लियर? अभी एक ही केपीओवी पकड़ा हुआ हमने, और भी हो सकते हैं, उल्टा रख देना, उल्टा पेंट हो जाना, बट अभी वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है पेंट तो सही हो रहा है बट दूसरी तरफ जा रहा है, ओनली वन केपीओवी वी हैव टेकन। अब ये सोच लो एक केपीओवी को मैप करने में इतना लगेगा, ऐसे 10 केपीओवी को भी मैप करोगे तो पूरा मैप करने में तो बहुत टाइम लगेगा, करेक्ट? अभी हमने एक केपीओवी को मैप कर रहे हैं अगेंस्ट द केपीआईवी। ओके, प्लीज कम बैक। सो क्या बोल रहे थे आप, प्रीवियस प्रोसेस में क्या हो रहा था? वीडियो विजुअलाइज करना पड़ेगा ना? यस यस। तो क्या कर, उसमें मिरर को जो पिक कर रहा है वहां से हैंगर से, हाँ जी हाँ जी, या हैंगर से पिक करके वो कन्वेयर पे रख रहा है। ठीक है। तो एक मिरर के ऊपर दूसरा मिरर मतलब या तो पूरा रख दे या थोड़ा सा ओवरलैप करके भी रख सकता है, मतलब रख तो रहा है, वहां गैप तो रख नहीं बिटवीन रहा द है। टू मिरर, पहले तो आप करो गैप क्या रख रहे हैं, गैप बिटवीन द टू मिरर है ना, ये यस आपका एक क्रिटिकल पैरामीटर है। हाँ।
वो गैप कम ज्यादा हो सकता है, गैप बिटवीन दी मिरर्स। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मिरर्स फिक्स है या वो भी वेरी कर रहा है? नंबर ऑफ मिरर भी फिक्स है, क्योंकि जितना बार भी रख रहा है वो 5 या 6 ऐसे ही कुछ रख रहा है। 6 रख रहा है, ठीक है। So let नंबर us ऑफ go for मिरर्स it. वन, तो मतलब ये अब सिंगल। मैं अगर नंबर, अब प्लीज लिसन दिस कन्वर्सेशन वेरी क्लियरली, मैं अगर यहाँ नंबर ऑफ मिरर्स लिख देता हूँ पैरामीटर, इसका मतलब KPIV है, की प्रोसेस इनपुट वेरी, वो वेरिएबल है, वो बदलता रहता है, कभी 5 रखता है, 6 रख रहा है, बिकॉज ये KPIV नहीं है, ये फिक्स है, 6 ही रखता है, और तब भी प्रॉब्लम आ रही है, फिक्स पैरामीटर है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लूंगा। इज इट क्लियर? इट इज नॉट KPIV, क्लियर सर, क्लियर। है ना। इनपुट वेरिएबल होना चाहिए ना, कि जैसे अगर बोल रहे 5 रखता है कभी 6, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मिरर प्लेस्ड ऑन द कन्वेयर, बट अभी वो केस नहीं है, तो गो टू नेक्स्ट नाउ। अभी और रखते हुए और कुछ पैरामीटर है, बाकी लोग भी रखने की जंप जो इन कर सकते हैं। स्पीड है सर रखने की, जैसे वो उसने 6 मिरर एक साथ लिया और 1 बाय 1 ड्रॉप कर रहा है, कन्वेयर हाँ। अपने कांस्टेंट प्लेसिंग स्पीड से मूव टाइमिंग, हो रहा है। प्लेसिंग प्लेसिंग टाइमिंग, टाइम, यस। ये भी एक आ गया, प्लेसिंग टाइमिंग आ गया। और बताइए, सो गैप हो गया, रखते हुए गैप होना चाहिए, प्लेसिंग टाइमिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और रखते हुए कुछ और सा पैरामीटर अभी पता नहीं है मुझे, वो इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या रिलेशनशिप है, बट लिस्ट है, KPIV है, वी डोंट नो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस और नॉट। व्हाट अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द मिरर, मतलब ऐसे रख रहा है या हाँ, ऐसे रख, ओरिएंटेशन का पार्ट हो सकता है सर, कि जैसे अगर मैनुअल हम रखता है ना, कोई हाँ, रोबो तो रख नहीं रहा, तो थोड़ा सा नहीं, ओरिएंटेशन भी तो अलग हो सकता है। हाँ ओरिएंटेशन भी फिक्स होना चाहिए। ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन इज प्रॉब्लम और नॉट, आई डोंट नो, लिखते जाना है। ओरिएंटेशन ऑफ मिरर, अब ये नहीं लिखना वाइल प्लेसिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेसिंग का ही चल रहा है, ठीक है ना, पीछे का प्रीवियस सेकंड कैटेगरी का चल रहा है। अच्छा, हाइट ऑफ ड्रॉपिंग भी है कुछ? हाइट ऑफ ड्रॉपिंग ये कितने टॉप से वो रख रहा है, मतलब कितने हाइट से अगर रख चिप रहा ऑफ हो जाए, भाई चलो टूट ही गया, कुछ आगे का एज, हाँ, आप तो फिनिश की yes, बात कर रहे हो, है। हैं? यस यस। चलो, कि अब वो इम्पैक्ट करता है या नहीं करना, गॉड नोज, वी डोंट नो, ओके, बट वी आर स्टिल राइटिंग। सो ड्रॉपिंग हाइट ऐसे टक 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 रखता जा रहा ना, तो एक मैंने वो ड्रॉपिंग हाइट ले लिया, ओरिएंटेशन ले लिया, गैप बिटवीन द मिरर प्लेट ले लिया, प्लेसिंग टाइम ले लिया। अच्छा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, बस सिंपल रख ही रहा है। अब इसके अलावा कन्वेयर की फ्लैटनेस का भी कुछ इम्पैक्ट आएगा सर? बिल्कुल आएगा, बट कन्वेयर तक पहुंचे ही नहीं है अभी, तो 2 कैटेगरी ऑफ Okay. थिंकिंग तक है हम। पहला हमने देखा पीछे का मटेरियल क्या इफेक्ट डाल रहा है, दूसरा हमने देखा कि रखते हुए प्रीवियस प्रोसेस से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब मैं प्रोसेस के पेंटिंग के अंदर एंटर करूंगा, थर्ड कैटेगरी से, ठीक है ना सर? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो अब लगता है पेंटिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। सो थर्ड हमारा क्या था, कोई बता सकता? मशीन वेरिएशन है सर। यस, हाँ, अब आ जाइए, मशीन में इक्विपमेंट में क्या क्या है? कन्वेयर है, बिल्कुल ठीक है। कन्वेयर है, हाँ, और तो कन्वेयर में और बताओ पहले, तो कन्वेयर, वाइब्रेशन हो सकती है सर, या कोई तो अनइवननेस हो उसमें। हाँ, तो मैं लिख लेता हूँ थर्ड में कन्वेयर की, वो आपने पहले तो स्लैकनेस बोला था किसी ने, यस सर। जस्ट कन्वेयर में स्लैकनेस बोला था। स्लैकनेस मतलब वही फ्लैटनेस, और जो मतलब यू अंडरस्टैंड दैट, वो लूज हो जाती है ना। मतलब विड्थ जो है वो सब, कन्वेयर की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाँ, मतलब वो ये नहीं कि आप ऐसे लूज हो गई, मतलब वो फ्लैट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेच्ड होनी चाहिए, ऐसे लूज नहीं हो जाना चाहिए सर कन्वेयर वो में। स्ट्रेटनेस हो गया, बट एक पॉइंट ये मेरा था कि जो कन्वेयर की विड्थ है, कभी कभी क्या है कि कन्वेयर जो है मतलब कहीं उसका विड्थ जो है, जो मतलब विड्थ की बात करूं, एक्स है और कहीं पे x-1 है, तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मिरर तो फिक्स है ना जो रख रहा है वो 6 पीस, हम्म। तो वहां भी तो ओवरलैप। क्या कन्वेयर बेल्ट वेरिएबल है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये लोगों से पूछना पड़ेगा भाई, विड्थ वेरिएबल है क्या, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, या अगर वेरिएबल है तो साइड के पीसेस में ही खराब आ रहा है, मतलब वी नीड टू हाँ फाइंड आउट। मतलब वो एक, हाँ एक आ सकता है possible। हाँ, तो अगर ऐसा है तो लिखना है, नहीं तो फिर हम कहेंगे ऑलरेडी डिफाइन फेज में हमने लिया है, हर जगह ही प्रॉब्लम आ रही है, कोई साइड से लिंक नहीं है, सो इट्स नॉट ए विड्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो मतलब अगेन डेटा होना चाहिए ना, डिफाइन फेज जितना अच्छा होगा, नैरो डाउन होगा, तभी उतने ही हम लोग यहाँ कम चीजें, मतलब स्पेसिफिक वाइब्रेशन के बाद वाइब्रेशन। कन्वेयर की स्पीड हो जाएगी। पहले तो स्पीड तो लिख ही लें, स्पीड से ही वाइब्रेशन का संबंध है, कितनी स्पीड पे चलाना है।
सॉरी 4 नहीं है, थर्ड के अंदर ही पॉइंट्स है, ठीक है ना। Yes. कन्वेयर स्लैकनेस, कन्वेयर स्पीड, और क्या है? मतलब फॉरेन पार्टिकल ना छिपा हुआ हो। हाँ वो ठीक है, कन्वेयर का वो क्लीनिनेस ऑफ द कन्वेयर सरफेस है, Yes. कन्वेयर सरफेस है, Yes. कन्वेयर सरफेस। और बताइए सर, और क्या इक्विपमेंट, और क्या कन्वेयर के बारे में हो गया, बहुत सारी चीजें, और भी कुछ है? तो अभी हम ये जब सर मतलब एक पेंट इसमें प्रोसेस में जा रहे हैं ना सर। पेंटिंग ही चल रहा है सर, पेंटिंग के अंदर तो मशीन जो इसमें सर इसमें क्या है? मोटर आ गया सर, पंप आ गया पेंट का, जो पेंट को हाँ जो तो ये मोटर का बोलो, पंप प्रेशर, सर पंप इसमें प्रेशर। एक ये पॉइंट ये होता है जो पेंट कहीं पे कन्वेयर पे ना रहो, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है, उसमें जो एयर कर्टन है, अगर जैसे जब स्प्रे होता है तो दूसरी वाली कन्वेयर पे अगर पेंट आएगा तो जो पार्ट प्लेसिंग करेगा तो उसमें भी चांसेस है कि पेंट दूसरे सरफेस पे चिपक सकता है। हाँ तो पेंट सरफेस ले लेते हैं, है ना, क्लीनिनेस ऑफ द सरफेस, ठीक है। पेंट लगा नहीं होना चाहिए सरफेस, क्लीन होनी चाहिए सरफेस, वेरी सिंपल। यस यस। फिर पंप आ गया, पंप भी लगा, पंप भी देखा था हमने, शक्ल थी, पंप था वहां यस, पे, पंप था वहाँ पे। पंप है तो पंप का प्रेशर होगा, कोई पंप प्रेशर का से पंप प्रेशर होगा। है स्पीड और उस पेंट फ्लो जो फ्लो प्रेशर एंड स्पीड स्पीड है। पे फ्लोर में है। ठीक है, सब मोटर का गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या चीज? मोटर गियर बॉक्स। तो उससे तो फ्लो और प्रेशर में ही प्रॉब्लम आएगी ना, अगर मोटर में प्रॉब्लम है तो। अब आते हैं, ये नेस्टेड कॉज है पंप प्रेशर का, यस और नो? यस। पेंट तो की विस्कोसिटी हो सकती है सर, पेंट की हैं? विस्कोसिटी, पेंट की विस्कोसिटी। हाँ ये देखना पड़ेगा कि वो विस्कोसिटी कैसे मेंटेन हो रही, मैनुअल है ऑटोमेटिक है, क्या है ये? यस यस। नहीं ये पहले पूछना पड़ेगा प्रोसेस में, कैसे लगा आपको विस्कोसिटी कैसे मेंटेन, दिखाया नहीं था वैसे पूरा वीडियो में। नहीं वहाँ तो नहीं दिखाया सर, लेकिन पंप जो है, सपोज मान लीजिए पंप में अगर वेरिएशन हुआ, उसके प्रेशर से स्पीड में कहीं भी गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है, जो अगर वेरिएशन हुआ तो जो फ्लो हो रहा है, जो पेंट का फ्लो हो रहा है कन्वेयर के ऊपर जो मिरर के ऊपर, उसमें वेरिएशन हो सकता है। अच्छा जो कर्टेन है, कर्टेन का जो कर्टेन, हाँ, फ्लो है ना, बेसिकली कर्टेन का कर्टेन का फ्लो, जो स्लिट है, स्लिट हम स्लिट से जो आ रहा है, जैसे हम नोजल से पेंट निकलता है तो क्या फ्लो है, उसका फ्लो प्रेशर क्या है, सो उस टाइप का। पेंट कर्टेन का जो पेंट का कर्टेन है उसका बेसिकली स्लिट साइज या स्लिट वेरिएशन, जो स्लिट से बाहर आ रहा है ना बेसिकली, वो हाँ। लेफ्ट टू राइट वेरिएशन तो नहीं है कहीं, मतलब जो पूरा स्लिट बना हो ना इतनी Yes, बड़ी sir. width में। और सर जहाँ पेंटिंग हो रही है जिस कर्टन के नीचे, वहाँ पे दो कन्वेयर आपस में ज्वाइंट हो रहा है, कुछ मतलब गैप है वहाँ पे, हाँ तो वो भी गैप तो है। वेरिएबल हो सकता है। नहीं वो तो फिक्स गैप है, वो वेरिएबल नहीं है। नहीं, जो कर्टन जो वहाँ पे कन्वेयर के ऊपर एक व्हाइट कर्टन जो है ना, जहाँ पे पेंट है, मतलब ए और बी जोन में पेंट को मतलब स्प्लेज नहीं होने दे रहा है, मतलब नीचे सीधा जा रहा है वो, और हाँ फिर जा करके वो टैंक में चला जा रहा है, फिर से वो करेक्ट वापस करेक्ट। आ रहा है। सो उसी को मैं पेंट कर्टेन स्लिट थिकनेस बोल रहा हूँ, पेंट का कर्टेन में वेरिएशन हो सकता है बेसिकली। क्योंकि सर वीडियो में एक ऑब्जर्वेशन था, हाँ एक पॉइंट पे ऐसा था कि जिस साइड में मोटर है उस साइड में जो पेंट कर्टन लगा हुआ है, कुछ सेकंड के लिए एक मिरर या कोई मिरर ऐसा पास आउट हुआ जिस समय वो हल्का सा बेंड हुआ था कर्टन, मतलब ऐसा लग रहा था कि उठ गया वो कन्वेयर से ऊपर की तरफ, पर्टिकुलर एक जोन में जिधर पे मोटर लगा हुआ है जिस साइड में। बेसिकली ऐसा है कि ये एक पेंट कन्वेयर है, एक ये कन्वेयर है, ठीक है ना, ये छोटे रोलर लगा, यहाँ से प्लेट फ्लो करती है, ऐसे आती है, ऊपर से कर्टेन है, ये कर्टेन बेसिकली नीचे जा रहा है, और ये ऊपर स्प्लिट वो जो है ना जहाँ से वो कर्टेन बन रहा है, ठीक है, पेंट फ्लो कर रहा है और यहाँ टैंक में जाके फिर वापस से ऊपर इसके थ्रू जाता है। सो और ये पेंट इसके ऊपर से ऐसे जाता है तो पेंटिंग हो जाता है बेसिकली। सो ये जो डिस्टेंस बिटवीन ये जो स्पेस क्रिएट है ये फिक्स है, करेक्ट, सिर्फ ये पेंट की जो थिकनेस है, ये कर्टेन जो है ना, ये सिर्फ वेरी हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, पेंट कर्टेन स्लिट से जो निकल के आ रहा है थिकनेस। अब आप क्या कह रहे हो वो थोड़ा बताओ। मैं ये कह रहा हूँ सर कि वीडियो में जैसे दिखा, जो व्हाइट कर्टेन दिख रहा है ना, जहाँ पे जिस हाँ वो एरिया में पेंटिंग हो रहा है, ये जो पॉइंट, ये व्हाइट कर्टेन है बेसिकली। हाँ, तो व्हाइट कर्टन जो है वहां पे एक बार व्हाइट कर्टन किसी मतलब पर्टिकुलर टाइम में वो जो है जिधर जिस साइड में मोटर लगा है कन्वेयर, हाँ जो हाँ पेंट के लिए मोटर जो लगा है, हाँ। उस साइड में वो कर्टन जो है मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन में वो अप हो गया था, उठ गया था वो, फिर कुछ सेकंड के बाद वो डाउन हुआ है। वीडियो में एक ऑब्जर्वेशन आया था ऐसा। तो पेंट कर्टेन का फ्लो प्रेशर हो गया ना बेसिकली,
हाँ, ये कह सकते हैं कि वहां पे फ्लो डाउन हो गया, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है तो कि कर्टेन उठ बेसिकली गया। मैंने पंप प्रेशर लिख लिया बेसिकली, इट इज पंप प्रेशर, नथिंग एल्स, राइट। और और कुछ नहीं करा हुआ। जिस विड्थ में जो कर्टन बन रहा है, पेंट का जो कर्टन बन रहा है, हम्म, इस विड्थ में कन्वेयर के रिस्पेक्ट में, तो हम ये कह सकते हैं, जो वीडियो में ऑब्जर्वेशन हुआ मेरा, कि जो कर्टन बन रहा है उस कर्टन की जो विड्थ होनी चाहिए, इस विड्थ विड्थ में वेरिएशन हो गया, विड्थ में। हाँ तो बोल दिया मैंने, पेंट कर्टेन स्लिट और विड्थ, कुछ भी नाम लिख सकते हो। स्लिट मतलब जितने स्लिट से बाहर आना चाहिए, जो विड्थ है ना, स्लिट ही बना हुआ है ना जिसके थ्रू आ रहा है वो, यस। सो उससे विड्थ वेरिएशन हो सकता है बस, ठीक है। सो पेंट प्रेशर, पंप प्रेशर, पेंट कर्टेन विड्थ, ठीक है सर। और सर, जिस रोलर से वो मिरर जो है पेंट होने के बाद, जो जैसे रोलर पे जाकर के फिर ये डाउन या अपवर्ड में मिरर जा रहा है, पेंटिंग के बाद या पेंटिंग के पहले, ऐसा कुछ था उसमें। हाँ हाँ तो जो रोलर है, वो रोलर भी एक इनपुट हो सकता है केपीआईबी, हाँ, तो ये रोलर सिर्फ उसमें कुछ सपोर्ट कर रहा वेरिएशन हो। है, हाँ। रोलर इज एक्टिंग लाइक ए सपोर्ट, उसके ऊपर से जा रहा है। तो अभी मैं फिक्चर्स और टूल्स पे आता हूँ, जितनी भी सपोर्टिंग डिवाइसेस हैं वो हम फिक्चर टूल्स की तरह यूज करेंगे, ठीक है ना। यस सर। पहले मैं कन्वेयर और कोई इक्विपमेंट है यहाँ पे, और कोई मशीन का भी फोर्थ कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है इक्विपमेंट, बेसिकली मशीन कोई और है। एक तो कन्वेयर बेल्ट हो गई, कन्वेयर्स हो गए बेसिकली, और ये पंप हो गया, और तो कुछ है नहीं, ठीक है सर। नहीं सर, बाकी तो पंप और कन्वेयर से रिलेटेड बाकी जो इंटरनल पार्ट है, जैसे पाइप है जहाँ से पेंट का फ्लो का एक आ सकता है सर, कि जो हाँ पेंट तो का पंप, फ्लो हो रहा है उसका हाँ डिस्टेंस, जैसे मोटर से जिस टैंक से पेंट का फ्लो हो रहा है, तो फिर तो जाकर के उसी पे आ जाएगा ये कि वही इसकी आएगा फ्लो रेट, फ्लो वही क्या आ है। गया, पंप प्रेशर फ्लो रेट, और कुछ नहीं है। तो ये 2 पॉइंट आ गए आपके, ठीक है ना, Yes. पंप से रिलेटेड। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, जिग फिक्चर टूलिंग। कोई चीज ऐसी है जो सपोर्ट कर रही है, जिसके थ्रू प्लेट जा रही है, या कोई चीज सपोर्टिव है, तो वो रोलर है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। जो रोलर के थ्रू जा रही है ना, जैसे एक बीच में जो ये जो स्प्लिटेड कन्वेयर है, तो बीच में रोलर लगा हुआ, तो रोलर इसको रोलर थोड़ा सा हेल्प करता है, तो पुश टू दी नेक्स्ट, ठीक है ना। सो वो फिक्स, वो एक सपोर्टिंग सिस्टम है, बाकी तो और तो कोई सपोर्टिंग है नहीं। तो रोलर के बारे में कुछ बोलना है तो बोल दो, आप क्या क्या कहना चाह रहे हो, अब आप बोलो रोलर के बारे में। और रोलर में जैसे पहले हम इसमें वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो रोलर में वाइब्रेशन हो जिससे उसका पोजीशन वो हाँ, तो डिस्टर्ब हो रहा हो। रोलर वाइब्रेशन, और रोलर का क्या हो सकता है, रोलर रोलर के सरफेस पे कुछ improper हो चिपका हो। सरफेस, सकता रोलर का रन आउट, या मतलब वो ऐसे ऊपर ओवल ओवल चल सकता है, ठीक है ना। स्पीड। हाँ, रोलर स्पीड, सो रोलर स्पीड, रोलर रन आउट, रोलर वाइब्रेशन, रोलर सरफेस। तो ये फिक्चर टूलिंग का हमारा यही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। रोलर का गैप भी दोनों कन्वेयर जो है और बीच में रोलर है, इनके बीच में भी अगर प्रॉपर गैप नहीं हो तो उसमें भी चांसेस है। वो केपीआई भी होना चाहिए, वो गैप अगर एडजस्टेबल है तो मैं ले लूंगा, नहीं है तो फिक्स है, पूछना पड़ेगा। सो मैं वैसे बता देता हूँ, वो फिक्स था, वो हमने लिया था, बट वो केपीआई भी नहीं था। ओके सर। सो इनपुट वेरिएबल होना चाहिए सबसे, कांस्टेंट चीज कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई चीज फिक्स हो गई इज ऑलवेज बेटर। राइट वेरी करती है वो, कभी पेंट कर्टेन में प्रॉब्लम आ रही है, कभी जैसे थिकनेस वेरी कर सकती है, पंप प्रेशर वेरी कर सकता है, सो वो सारे एक्सेप्टेबल है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उन चीजों को कंफर्म करना है कि वो केपीआई भी है नहीं है। अगर सपोज है, ये चीज भी सेटअप में इधर उधर हो सकती है, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू कन्वेयर्स, ठीक है ना सर, तब मेरे को लिखना पड़ेगा। अब फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं सर, ह्यूमन वेरिएशन क्या है यहाँ पे, ह्यूमन का क्या रोल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में नहीं था सर। जो विस्कोसिटी की आपने बोला था ना, ये विस्कोसिटी और पेंट जो है वो मैनुअल ऑपरेशन है। तो वो सर यहाँ टैंक, पे पेंट प्रिपरेशन का आ जाएगा कि जो हाँ तो वो वहां आता है 3-4 घंटे बाद, वो भी एक छोटा वीडियो हमने बनाया था, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं है। कि वो आके कुछ पेंट ऐड करता है, कभी थिनर ऐड करता है, फिर एक फोर्ड कप है, एक कप होता है उससे ना, यस सर, ऐसे फोर्ड कप फ्लो बोलते हैं, चेक करता हूँ सर। वो कितने 45 सेकंड में खाली हो गया, तो 45 विस्कोसिटी बोलता है, ऐसे कुछ। विस्कोसिटी चेक करने के लिए। फ्लो चेक तो वो अगर गाढ़ा होता है तो थिनर ज्यादा मिला देता है, और अगर पतला होता है तो पेंट मिला, ऐसे उसको ना रेशो में मिलाता है वो, यस सर। और हर 3-4 घंटे में आके ना वो ये काम करता है। सो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ह्यूमन वेरिएशन में, अब मैं नेग्लिजेंस वर्ड यूज नहीं करूंगा, मुझे टेक्निकली बताओ क्या बोलूंगा, पेंट विस्कोसिटी, सीधा सा बात करूंगा, यस। क्यों सर। सो फिफ्थ Yes, पॉइंट हो गया पेंट विस्कोसिटी, या मिक्सिंग ऑफ पेंट एंड थिनर, बेसिकली रेशियो हो गया विच इज रिजल्टिंग इनटू विस्कोसिटी। Yes.
टेम्परेचर भी आएगा सर इसमें, मतलब विस्कोसिटी विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ना। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी विस्कोसिटी का ही कॉज बनेगा ना सर। हाँ तो पहले ह्यूमन के लिखते हैं, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर लास्ट है, अभी लिखते हैं, बिल्कुल आते हैं, अभी 5th पॉइंट पे पहुंचे हम। सो वेरी करेक्ट। सो 5th में क्या आ गया आपका, ह्यूमन वेरिएशन में ये विस्कोसिटी वाला वेरिएशन आ गया, पेंट थिनर एडिशन वाला आ गया, मिक्सिंग। और ह्यूमन का कोई काम है इसमें? और तो इसमें कुछ सर नहीं। फोका योग्य नहीं है पर्टिकुलर किस टाइम पे आके विस्कोसिटी चेक कर रहा है, थिनर वगैरह ऐड कर रहा है। हाँ, तो उससे विस्कोसिटी वेरी होगी बस, और कुछ नहीं। Okay. ठीक है, एग्री, सब कुछ विस्कोसिटी पे जा रहा है। पेंट भी तो गलत यूज कर सकता है सर, गलत पेंट का सिलेक्शन कर ले वो। हाँ, तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम डेफिनेशन में कि पेंट हमारा गलत पेंट हो गया, नहीं सर, वाइट तो पे अगर ग्रे हो गया। पेंट अगर गलत ये ले लिया, अगर गलत सिलेक्शन कर लिया पेंट का, तो वो भी एक विस्कोसिटी का मतलब ज्यादा कम होने के एक नहीं फैक्टर नहीं, बन फिर सकता है। आउटपुट पे तो पेंट ही कुछ और होके आएगा ना, वो तो डेफिनेशन फिर जब वो चेक करेगा ना डिटेक्शन लेवल पे, तो वो तो बोलेगा ना रॉन्ग पेंट, केपीओवी भी तो होना चाहिए ना वो। पेंट मटेरियल है जो सर, पेंट मटेरियल जो इनपुट है, जो मटेरियल, जैसे हम मिरर की बात कर रहे थे कि मिरर कहीं से आ रहा है, तो पेंट भी तो कहीं से आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो पेंट जहां से आ रहा है वो मतलब नॉन स्टैंडर्ड हो, मतलब वहीं से आ जाए, उसको हाँ ठीक है, विस्कोसिटी पेंट कुछ आया, थिनर कुछ और आया, मिक्स करके इसको एक्स विस्कोसिटी बनानी है उसको। हाँ, तो विस्कोसिटी पे ही आएगी फिर घुमा के। हाँ, मतलब पेंट भी तो वो इनपुट और वो मिला के इसको मिक्सचर करना है, चाहे वो ज्यादा मिलाए कम मिलाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट ए विस्कोसिटी टू गो ऑन, इट शुड गो इनटू द पेंटिंग, ठीक है ना। Yes. वो उसके सब कॉज हो जाएंगे, अगर मुझे मालूम चल जाए विस्कोसिटी इज द रीजन, तो फिर तो मैं पीछे जाऊंगा ना उसके नेस्टेड एक्स पे। Yes. बट अभी तो ये विस्कोसिटी लेवल पे ही फंसे पड़े, हमें पता ही नहीं विस्कोसिटी इज द रीजन और नॉट। सो फाइनली वो आउटपुट विस्कोसिटी पे ही आ रहा है, मतलब सॉरी इनपुट्स, Inputs, yes. और ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द 6th। व्हाट इज 6th? एनवायरमेंटल फैक्टर। सो एम्बिएंट टेम्परेचर आपने बोल दिया, ह्यूमिडिटी बोल दिया, और क्या बोला? ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर वाला आ गया इसमें, टेम्परेचर विस्कोसिटी का लिंक है, टेम्परेचर आ गया। और सर एक और चीज आ गई जो अगर आपने देखी हो वहां पे ऊपर एक काफी बड़ा एक जहां पे ये पेंटिंग हो रहा है, Exhaust. हाँ एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वहां से वो एग्जॉस्ट है। सो एयर डायनेमिक, मतलब वो एयर वहां से निकलनी चाहिए, फ्यूम्स, तो एग्जॉस्ट एयर। Yes. 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 सो एयर एरोडायनेमिक है कि एक फ्यूम्स यहाँ से आएंगे और वहां निकल जाएंगे, क्योंकि एयर भी तो कर्टेन को हिला सकती है। सो हवा तो वहां है ही ना, कुछ सक्शन हो रहा है, वैक्यूम है, सक्शन है। सो एरोडायनेमिक्स आ गया, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी आ गया, एंड टेम्परेचर आ गया। ये आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए। सर ये जो पेंट जैसे एक पॉइंट है, ये एग्जॉस्ट से रिलेट कर जाएगा। जैसे कोई भी पेंटिंग प्रोसेस होता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि पेंट जब कोई लिक्विड गिरता है तो ड्रॉपलेट बनता है उसका, मतलब छींटा सा उड़ता है, जो हाँ एग्जॉस्ट के माध्यम से या तो टॉप में है या बॉटम में, एग्जॉस्ट के माध्यम से उसको निकल जाना चाहिए। हाँ, अगर वो एग्जॉस्ट नहीं टॉप पे निकलता है तो भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो एग्जॉस्ट का ले लिया हमने, एग्जॉस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी हमें लेना चाहिए, एरोडायनेमिक्स कि वैक्यूम कितना है, सक्शन कितना है, ठीक है ना सर। यस यस क्योंकि वो एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए रखा उन्होंने, तो मैं इसलिए एनवायरमेंटल फैक्टर में डाल रहा हूँ उसको। यस। वो कंट्रोल प्लान का वैसे पार्ट नहीं है कि एग्जॉस्ट होके ऊपर फ्यूम निकल जाए। सो बट दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो फ्यूम आपके बेकिंग ओवन में चले जाएंगे ना तो फायर हो सकता है। सो एक सेक्शन ऊपर रखा हुआ उन्होंने, पूछा था हमने, मतलब वी आल्सो आस्क्ड दैट कि ये ऊपर सेक्शन क्या है, सो हमने इसको एनवायरमेंटल फैक्टर में डाल दिया। सो देन आई स्टॉप इट हियर। सो आप मेरे को ये बताओ कि ये 6th लेवल ऑफ थिंकिंग से आपके कितने लिस्ट ऑफ केपीआई आ जाएंगे? बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे। आ जाए। एक पेंटिंग प्रोसेस में जैसे मैं फर्स्ट से शुरू हुआ कि फ्लैटनेस था, थिकनेस था, ये 4 तो आपके इधर आ गए, फिर है ना ये 3-4 आपके सेकंड आ गए, 8 ही हो गए, फिर ये कन्वेयर स्पीड, ये स्पीड, सो मतलब 5-6 इसमें आ गए, फिर 4th लेवल पे आ गए, तो मिला के 25-30 आपके केपीआई बन जाएंगे। सो आप लिखोगे कि जो मेरी पेंट की डिफेक्ट प्रॉब्लम है केपीओवी, उसके ये 25 कॉजेज हैं केपीआई, जिसको मुझे y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में एनालाइज करना है। इज इट राइट? सो मैं लिखूंगा y है पेंट ट्रिकल डाउन टू अदर्स, और fx क्या है, x1 x2 क्या है, वो जो आपने बोला राइट, पेंट का मिरर का प्रोफाइल, मिरर की थिकनेस, ऐसे करते x1 x2 x3 करके x25। क्यों सर? यस। यही fx फंक्शन बन गया ना आपका। अब मुझे ढूंढना है कि ये कौन सा एक्स वाई के साथ संबंध रखता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दैट्स व्हाट द एनालिसिस फेज इज। सो y इज इक्वल टू एफ एक्स रिलेशनशिप बना दिया मैंने।
सो इज इट फाइन? सो कई लोग ना मुझे केपीआईवी के से 3-4 पॉइंट लेके आ जाते हैं बस कि सर ये 3-4 रीजन है, ये मुझे दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पूरा डिटेल्ड में मैप करके लेके आना है। और एक अगर देखिए ये पेंटिंग प्रोग्राम ने कितना 20-25 मिनट लगाया होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में, व्हाट डू यू थिंक? यस सर। लेकिन हमने जनरल ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं किया है, डिसिप्लिन किया है। जैसे आगे कोई भाग रहा था तो रोका नहीं, अभी फर्स्ट स्टेप के पहले सारे लिखो, भागो मत आगे, सेकंड के लिखो, फिर थर्ड में लिखो, फोर्थ में। क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ दिया, थर्ड का एक पॉइंट डाल दिया, तो वो बेसिकली सर फर्स्ट। ये थिंकिंग बेसिस पे नहीं होना चाहिए, एज एक्चुअल क्या है वहां पे जाके होना चाहिए, या तो हाँ, तो वीडियो अब मेरे मैपिंग पास हो या वीडियो दिखाने को है, लाइन पे खड़े हो जाओ 10-15 मिनट के लिए। लेकिन देखने का जो नजरिया है ना, हाउ टू लुक इनटू, वो 6 कैटेगरी माइंड में ना पूरी टीम होनी मैप्ड चाहिए। होनी चाहिए कि फर्स्ट लिखो, पहले सब लोग लिख लिए, सबने अपने पॉइंट लिख लिए, फिर क्लासरूम बोर्ड रूम में आओ और फिर डिस्कशन करो, इज इट फाइन? और फिर लिस्ट को फाइन ट्यून करो। बट सर ये जो नंबर ऑफ केपीआई भी जो निकल के आते हैं प्रोसेस मैपिंग से, हाँ जी, हाँ जी। तो सपोज ये मोर देन 40-50 भी आ जाते हैं, तो फिर हम उसको प्रायोरिटी में देखते हैं उसको कि कौन कितना क्या इम्पेक्ट करता है। हाँ, फिर मैं कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स बनवाता हूँ, जो आपको मालूम है, नंबर देते हैं 139, टीम बैठ के नंबर करेगा, रैंक करेगा, इतने ये केपीआईवी 1 2 3, इनको सबको रैंक करेंगे। तो इस केस में तो जाके फिर जो है मतलब रैंकिंग के इससे तो जो 9 में आएंगे सपोज, और टॉप नहीं में नहीं, अगर 50, जैसे 4 आपके टीम मेंबर है, 5 है, सबने नंबर दिया, किसी ने 1 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 9 दिया, 1 3 9 ही देने और कुछ नहीं देने, तो उसके राइट? कैलकुलेशन के बाद जो मतलब जो तो रैंकिंग जो टॉप आता है 10 आ गए, टॉप 5 आ गए, उनको पहले हम लोग एनालिसिस में लेके जाएंगे। सिर्फ सवाल ये नहीं है कि उनको हटाना है, किसको पहले एनालाइज करना है, सिर्फ इतना ही। प्रायोरिटाइजेशन है, नॉट टू Yes, एलिमिनेट एनीथिंग, जस्ट टू प्रायोरिटाइज, करेक्ट? सो बट सर ये ऐसा भी हो सकता है क्या कि सपोज मान लीजिए टॉप 10 आ गया हमारा, हाँ जी, उसमें एक ऐसा केपीआई भी है जो हमें पता चल गया एनालिसिस में कि ये इम्पेक्ट है, हाँ इसका जी। मतलब ये तो नहीं है कि 10 के बाद जो मतलब 30 बचे हुए हैं जिसका प्रायोरिटी कम है वो इम्पेक्ट ना कर रहा हो। नहीं, ये आप क्या कह रहे हो कि जो हमने प्रायोरिटी में नहीं लिया वो इम्पैक्ट कर रहा हो, करेक्ट? हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो 10 हट जाएंगे, तब आगे के 10 पकड़ो। हटाना नहीं है, प्रायोरिटाइज करना है सिर्फ, Yes, क्योंकि वहां 10 के मिलने के चांस ज्यादा है, इसलिए हमने उसको पहले लिया। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो अगले 10 पे जाएंगे। डिड यू गेट दिस पॉइंट? yes, और अगर आपको हटाना ही है तो फिर वो मैं मल्टीवेरी चार्ट बता दूंगा आपको, वो मेथड है ना हमारे, कि केपीआईवी को हटाना है, अगर 25 में से 4 लेके आना है, तो फिर उसके लिए हम लोग मल्टीवेरी करेंगे। वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, टूल्स का ना, डेटा एनालिसिस करेंगे। सो नाउ विल मूव टू डेटा एनालिसिस, दैट्स व्हाट आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज। सो हम लोग एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम डेटा को कैसे एनालाइज करना है। वी आर गोइंग टू शो यू डेटा एंड विल एनालाइज, डिफरेंट टूल्स लगा के एनालिसिस करेंगे। अब वो एक्स कहाँ से आया, वाई कहाँ से आया, वो सब आपको पता है, और प्रूव क्या करना है रिलेशनशिप, वो थ्योरी पता है। बट उसको कौन कौन से टूल से किस किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, वो हम लोग एक सेशन रखेंगे। एक ग्राफिकल टूल का सेशन रखेंगे और एक न्यूमेरिकल टूल का रखेंगे। इज इट फाइन? एक ग्राफिकल रखेंगे, ग्राफ से कैसे पकड़ना है, ग्राफिकल एनालिसिस से कैसे पकड़ना है, और एक न्यूमेरिकल रखेंगे। ठीक है ना? yes, इसका फायदा क्या है? ग्राफिकल और न्यूमेरिकल का क्या फायदा है? ग्राफिकल से विजुअलाइजेशन आएगा, न्यूमेरिकल से आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू, पी वैल्यू या कोई वैल्यू से कंक्लूड करेंगे। सो जब दोनों वैल्यूज नजर आएंगी, ग्राफ भी नजर आएगा और नंबर्स भी नजर आएंगे, तो आप डिसीजन लेना आपको आसान हो जाएगा। और डिसीजन क्या लेना है मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्निफिकेंट कॉज है या नहीं है, बस सिंपल डिसीजन लेना है। और ये टूल सब इसी चीज के लिए आपको हेल्प करेंगे। सो आई होप अपने प्रोजेक्ट में केपीआईवी की लिस्ट रेडी रखना सर। आप यहां तक सब उनको पहुंच जाना चाहिए। जब तक हम एनालिसिस फेज कंप्लीट कर रहे हैं, सब लोग केपीआईवी की लिस्ट रेडी कर लेंगे। इज इट फाइन?